السلام علیکم. کیسی ہے میری یوٹیوب کی فیملی؟ ہے ناول پڑھ رہی تھی حیام، جس کے رائٹر ہیں انم بخاری. آئیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف. ہیئر وی گو. بوک 3 سے 4 سالہ بچہ جو کہ دکھنے میں دبلا پتلا کمزوریوں جیسے کہ خوراک میں لاپرواہی برتی ہو، اور سچ بھی یہی تھا کہ وہاں اس کی فکر کرنے والا کوئی نہ تھا. اس عمر میں ہی ڈرا اس کے اندر پختہ ہو چکا تھا. بولنے میں ہچکچاہٹ اور الفاظ تو ویسے ہی نامکمل بولے جاتے. کب سے چارپائی سے ٹکا سامنے بیٹھی اپنی دادی کو بھوک لگنے کا اشارہ دے رہا تھا، جو کان منہ لپیٹے جوں کی توں ہی بیٹھی رہی. شاید اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کی دادی ہے. تیرے باپ نے میرے ہاتھوں میں دیا ہی کیا ہے جو میں تجھے کھلاؤں؟ جا جا اسی سے مانگ. اسے ہاتھ سے پرے دھکیلتا اور سامنے ایک طرف لیٹے اپنے سپوت کی طرف اشارہ کیا. اپنے باپ کو ایک نظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف لہرایا. سر نہ میں ہلا کر واپس چارپائی سے چپٹ گیا. اب کی بار آنسو جاری ہو گئے. بھوک کی شدت بڑھتی جا رہی تھی. وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، کیسے بھوکا رہ سکتا تھا؟ آہستہ آہستہ اس کے رونے کی آواز میں تیزی ہو گئی. وے جمال اٹھ جا، بھوک سے مر جاوے گا یہ. اپنی ماں کی آواز پر جمال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. مرنے دے اسے. کہاں سے لاؤں؟ کوئی پیسے نہیں ہے میرے پاس. جو تھا سب کچھ یہاں لانے پہ لگا دیا ہے. تو تجھے کون کہتا ہے بھاگتا پہ؟ زندگی عذاب کر دی ہے. اب کے تنگ آ کر وہ عورت اٹھی اور بچے کا فیڈر پکڑ اس میں صحن کا نل کھول کر پانی بھرا اور بچے کو پکڑا دیا. شاید وہ بچہ جانتا تھا کہ اس سے اس کی بھوک کہاں مٹے گی، لیکن بھوک ہو تو چنے بھی بادام ہی لگتے ہیں. فٹ سے فیڈر پکڑ اپنے منہ میں ڈال لیا. اتنے میں جمال کا موبائل بجنے لگا. موبائل کان سے لگا کر وہ جوں جوں دوسری طرف موجود شخص کی باتیں سن رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے رہے. بس ایک فکرہ اس کی سماعت میں باز گشت کرتا جا رہا تھا. کال بند ہو چکی تھی لیکن وہ وہی اٹکا ہوا تھا. جمالے، اس بابو نے تجھے ڈھونڈ لیا ہے. یہاں سے نکل جا ورنہ کل وہ تیرے سر پر بندوق تھامے کھڑا ہوگا. اسے یہاں سے نکلنا تھا. اتنا جلدی سب ختم ہونے ہی نہیں سکتا. کوئی نئی جگہ ڈھونڈنی تھی. اسے پیسوں کی ضرورت تھی. قریب مسجد میں مغرب کی آوازان ہو رہی تھی. اس کی آواز بلڈنگ کے 7ویں فلور پر موجود بنے خوبصورت آفس تک آسانی آ رہی تھی. اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا آنکھیں بند کیے وہ پرسکون کلام سن رہا تھا. لمحہ دو لمحہ بعد اس کے لب ہلے. وہ یقیناً اپنے خدا کے بلاوے پر لبیک پکار رہا تھا. اذان ختم ہونے کو تھی. جھک کر اپنے جوتے اتارے اور ڈریس پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرنے لگا. بازو البتہ پہلے سے ہی کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھے. چلتا ہوا آفس سے منسلک باتھ روم تک آیا اور وضو کی غرض سے رکھی ہوئی مخصوص چپل پہن کر باتھ روم میں جا کر نل کھولا اور وضو کے لیے جھک گیا. جوں جوں وہ وضو کرتا گیا ساری بے سکونی رفتہ رفتہ سکون میں ڈھل رہی تھی. ساری تھکاوٹ سائل ہونے لگی. وضو کر کے سیدھا ہوا تو وضو کا پانی جو چہرے کو تر کیے ہوئے تھا قطرہ قطرہ پھسلنے لگا. چند قطرے اس کی پلکوں پر سے ٹوٹ کر رخسار پر بکھرے. وہ نہیں جانتا وہ وضو کا پانی تھا یا اس کے آنسو. باہر آ کر ایک طرف جائے نماز بچھائی گئی. جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہی لگا کہ سب آسان ہے، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. اس وقت وہ آفس میں اکیلا تھا. پہلے کبھی کبھی جبکہ اب تو روز ہی دیر سے گھر جانا اس کا معمول بن چکا تھا. اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا. ہاں صرف درد تھا جو اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا. گہری سانس بھر کر نماز کی نیت باندھا نماز ادا کرنا شروع کی. پورا آفس سکون بخش رہا تھا لیکن کوئی اسے دیکھتا تو کہتا سکون تو وہ ہے. کتنی ٹھہری ہوئی نماز تھی اس کی. کوئی جلدی نہ تھی اسے. شاید وہ خدا سے لڑ کر نہیں پیار سے حق سے مانگنا چاہتا تھا. نماز ادا کر لی گئی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے لیکن اب خاموش تھے. ایک فکرہ اس کے ذہن میں بار بار گھوم رہا تھا. مجھے معاف کر دینا. اس کے باپ کی آواز تھی یہ. کتنے بھاری الفاظ تھے وہ. ایک اور فکرہ نہ جانے کہاں سے اس کی سماعت میں گونجا. دعا کرو مشد تمہارا بھائی بڑھنے سے بچ جائے. قرب کی تحریر چہرے پر واضح ہوئی. انشاءاللہ میرے ابو کو سلامت رکھیے گا. ایک دعا تھی جس پر اس کے وجود کے پور پور نے آمین کی صدا لگائی تھی. اسے آج اپنے باپ کی زندگی مانگنی تھی کیونکہ اس کی زندگی ان سے تھی. دونوں بھائی ایک دوسرے سے کٹ کر رہ گئے تھے. ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بات نہ ہوتی. نیتا بیگم اور نائلہ بیگم نے تو بس دونوں بھائیوں کو ملامتی نظروں سے دیکھتی رہ جاتی. ایک کو ڈر تھا کہ میرے بولنے سے میرے بھائی کا دل مزید ٹوٹ جائے گا اور ایک کو یہ دکھ تھا کہ کاش انہیں سب پتا ہوتا
तो मेरे भाई की औलाद उनकी औलाद की तकलीफ में ना होती। आरस ठीक ही तो कहता था कि ये वालिदैन बहुत गलत करते हैं, खुदगर्जी का खेल खेलकर औलाद को इंसान से एक बेजान चीज, कोई खिलौना बना देते हैं। हसन साहब की तबीयत दिन ब दिन ढलती जा रही थी। जो कुछ हुआ वो सब तो एक बहाना था, असल वजह हयाम से दूरी थी। कौन कहता था कि वो उनकी सगी औलाद नहीं थी? वो उन्हें सगों से बढ़कर थी। वो नाराज होकर बैठी थी, इतनी नाराज कि बात तक ना करती। क्या उनको इतना हक भी ना था कि वो बात तो करती, एक मर्तबा मुड़कर देख ही लेती, चाहे से कुछ ना बोलती? उसके दिए प्यार का इतना हक तो था ही। बेड से टेक लगाए वो तकरीबन लेटे हुए थे। इशा हो चुकी थी। अभी भी निदा बेगम उन्हें दवा खिलाकर गई थी। डॉक्टर के मुताबिक दवाएं उनके जिस्म के लिए अब जरूरी हो गई थी। उनका दिल कमजोर हो चुका था। दिल का मसला तो इन्हें पहले से ही था, लेकिन अब खतरे की बात ज्यादा थी। निदा बेगम के आते ही वो एक मरतबा फिर वही पुरानी रटी रटाई बात दोहराने लगे। बेगम, हयाम से बात तो करवाओ। नकाहत ज़्यादा आवाज सुनकर निदा बेगम को अपने शौहर पर तरस आया। करवाती हूँ, अभी अभी करवाती हूँ, आप फिक्र क्यों करते हैं? गले में आंसुओं का फंदा फंसने लगा। आंसुओं को रोकती वो कमरे से निकलकर बाहर आई तो नायला बेगम सामने ही लाउंज में बैठी थी। नायला, जी भाभी क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? निदा बेगम रोते हुए इनके पास जा बैठी, उनके हाथ मन्नत करते हुए थामे और बोली, हयाम से कहो एक मरतबा, एक आखिरी मरतबा बात कर ले अपने ताया से, उनका दिल बंद हो जाएगा वरना। नायला, ये क्या कह रही हो? और सोचो, एक बीवी के लिए ये कितनी बड़ी बात है कि वो अपने शोहर से मुतालिक कुछ भी ऐसा कहे। उन्हें यूं देख नायला बेगम की आंखों में भी आंसू आ गए। वो करेगी बात, मैं खुद कहूंगी उसे, कैसे नहीं करेगी? हमसे पहले आप दोनों उसके माँ बाप हैं, आप दोनों का हक ज्यादा है। निदा बेगम ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया। नायला बेगम सोच में मुब्तला हो गई थी। वो कैसे हयाम को राजी करती? हयाम कोई बात समझाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। कमरे में तारीखी फैली हुई थी, लेकिन तख्त पोश पर लेटे वजूद की आंखें चांद की आने वाली रोशनी से चमक रही थी। बेबे, अपनी अम्मा को बुलाया गया। बेबे, ये सईदा बीबी हैं कौन? इतने अरसे से जो सवाल उसके दिल में था, आज वो पूछ ही बैठी। जो भी है, तुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसे उसका जवाब ना मिला। बेबे बता देना, अब तो साथ साथ ही रहती हूं मैं उनके। कोई जवाब ना मिला तो एक मरतबा फिर खुद से ही बोलने लगी। बहुत अच्छी है वो, हवेली की कोई बीबी भी उनसी नहीं है, हो ही नहीं सकती। सजदा बीबी की आंखें चमकती हैं बेबे। अच्छा, एक मरतबा फिर जवाब वो मिला जो वो नहीं सुनना चाहती थी। अम्मा बेगम उनके साथ अच्छा नहीं करती। अच्छा ही क्या उन्होंने, जो उस हवेली के असूलों से बागी हो गई। उनकी माँ फौरन उठ बैठी और घूर कर उसे तकने लगी। मेरी गल गौर से सुन, आज के बाद जो तू ये बात दोबारा अपनी जुबान से निकाली तो काट दूंगी। कुछ गलत नहीं कह रही मैं। उस पर भी अपनी सईदा बीबी के बागीपन का भूत सवार था शायद। तू कुछ ना जाने है, चुप रहना तेरे लिए बेहतर है। उसे आखिरी मर्तबा तनबिया करती वो एक दफा फिर लेट गई, जबकि वो खामोश गुजरे दिनों को एक मर्तबा फिर से नजर के पर्दे पर दोहराने लगी। हयाम की नींद प्यास महसूस करने पर खुली। यूं महसूस हो रहा था जैसे कांटेदार झाड़ियां हलक में गाड़ दी गई हों। खुशकी के मारे मुंह अजीब सा हो रहा था। उसने थूक निकालना चाहा, लेकिन क्या महसूस हुई। 2-3 दिन से वो मुसलसल बेचैनी महसूस कर रही थी। उसका कोई अपना तकलीफ में था। बहुत हिम्मत करके वो उठी और बेड के गिर्द लटके पर्दे का सरसराया। वो साइड टेबल से पानी लेना चाहा, लेकिन गिलास और उसके साथ जग खाली पड़ा था। खुद को कोसी जग उठा और वो कमरे से निकल गई। उसे पानी की शदीद तलब थी। बावर्ची खाने में जाकर पानी का नल खोला और आगे झुककर यूं ही पानी हलक में उंडेलने लगी। मुंह के नीचे हथेलियों से कटोरी बनाई हुई थी। उसने अम्मा बेगम को गिलास से यूं पानी पीते देखा था। जब दिल को कुछ करार आया और प्यास बुझी तो पानी का छींटा चेहरे पर मारा और सीधी होकर गहरी सांस भरी। ये पानी भी खुदा की क्या कुदरत है ना मिले तो लगता है सांस रुकने को है। अपने लिए जग भरा, वापसी के लिए वहां से निकलकर सीढ़ियां फैलाने लगी। आधी सीढ़ियां ही अबूर की थी कि एक साया आंखों के सामने से गुजरा। शायद कोई भी था, उसने हयाम को ना देखा था। एक तो रात के वक्त यह हवेली उसे वैसे ही डरावनी लगती थी, और अब ये साया। हयाम तो आई ही क्यों नीचे, मर्द थोड़ी जाना था। एक ही हवेली के लोग जान ही नहीं छोड़ते, और अब ये साया। या अल्लाह मुझे बचा ले, पक्का वादा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, अम्मा बेगम कभी नहीं।
दिल न जाने क्या क्या बोलती। वो जल्दी से अपने कमरे को जाने लगी। कमरे तक पहुंच दरवाजा खोल अंदर दाखिल हुई, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले राहदारी के दूसरी तरफ बने गोल सतून के पीछे किसी औरत के जमीन पर बैठे होने का गुमान हुआ। ध्यान से देखा तो एक औरत मुंह छुपाए सामने वाली राहदारी में खिड़की के करीब बैठी थी, और खिड़की में कोई मर्द भी मौजूद था। उसने याद करना चाहा कि वो कमरा किसका था। जहन पर जोर देने पर एक नाम उसके लबों पर आया था, शामिर भाई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो औरत कौन थी और यूं रात के इस पहर उनके कमरे के बाहर क्यों मौजूद थी। ये तो तय था वो सब जान लेगी बहुत जल्द, लेकिन अभी उसे किसी की नजर में नहीं आना था। खामोशी से दरवाजा बंद करके वो अपने बेड पर जाकर वापस लेट गई। जब तक उसे नींद ना आ जाती, यही ख्याल उसके जहन में गर्दिश करते रहना था। वो दोपहर में बड़ी मुश्किल से अपने कमरे से निकली। सादिया आज फिर न आई थी, वजह मालूम ना थी। बावर्ची खाने में दाखिल होने से पहले खालदा बेगम के हमरा नफीसा बेगम उसे उसका जिक्र करते सुनाई दी, तो वहीं रुककर सुनने लगे। कान लगाकर किसी की बात सुनना इसकी आदत ना थी, लेकिन इंसानी फितरत कब कहाँ कैसे मजबूर हो जाए क्या पता लगता है। खालदा भाभी, अम्मा बेगम को कौन समझाएगा ये बात? समझाने वाली कोई बात नहीं है नफीसा, तुम यूं ही छोटी छोटी बातों को बड़ा बना रही हो। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं है भाभी, देखे ना मनाल, आप मेरी मनाल की आदत से तो वाकिफ हैं। वो सही की तरह उसके साथ फिरती है। खालदा बेगम ने उन्हें घूर कर देखा। जवाबन वो साथ साथ अपनी सफाई भी कहने लगी। मैं ये नहीं कह रही है आम बुरी है, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो शहर से आई है और मेरी बेटी उस हवेली में रहती है और अम्मा बेगम से बागी है। कहीं हयाम के साथ रहकर उसका बागीपन, आप समझ रही है ना? मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन एक बात तुम जहन नशीन कर लो, हयाम बहुत प्यारी बच्ची है। वो ऐसी बिल्कुल नहीं जैसे तुम सोच रही हो। वो कभी किसी को गलत करने पर मजबूर नहीं कर सकती। और एक दिन तुम देखना, अम्मा बेगम और मनाल के दरमियान जो सच जंग चल रही है ना, उसे खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ उसी का होगा। खालदा बेगम अपनी कही सुनाकर बावर्ची खाने से निकल तो सामने हयाम ही दीवार के सहारे खड़ी थी। निगाह उठाकर भी उन्हें ना देखा। खालदा बेगम ने मुस्कुराकर उसके सर पर प्यार किया। वो न जाने किस एहसास के तहत उनके सीने से जा लगी। उसे उनमें अपनी माँ दिखी थी। उनके साथ लगती वो थोड़ी जज्बाती हो गई थी, शायद इसीलिए आंसू के चंद कतरे बह निकले। खालदा बेगम ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ करती हुई बोली, आओ सब बैठकर बरामदे में दुपट्टों पर गोटा किनारी टांग रही हैं, तुम्हें भी सिखाऊं? हयाम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। जाने से पहले खालदा बेगम ने उसके काले लिबास पर चोट की। एक तो ये हर रोज काला और सफेद रंग पहनकर क्यों आ जाती हो? मुझे पसंद है ताई अम्मा, और मेरे पास सिर्फ यही 2 रंगों के लिबास हैं, बाकी सब रंग बहुत पहले छोड़ चुकी हूं मैं। खालदा बेगम उसका हाथ थाम उसे अपने साथ बरामदे में ले जा रही थी। ठीक है, फिर मैं बनवा दूंगी और तुम्हें पहनना पड़ेंगे। हयाम उनके चेहरे को देखा और ना नहीं कर सकी, लेकिन ये तो तय था वो इन 2 रंगों के सिवा कोई तीसरा रंग नहीं पहनेगी। बरामदे में आते ही उसे खुशगवार हैरत हुई। झूले पर अम्मा बेगम ने मामूल की तरह बैठी थी। बाकी तमाम मुलाजमें फर्श पर बैठी बड़ी बड़ी चादरों पर गोटा टांग रही थी। किरण भी वहीं एक तरफ को बैठी हुई थी। खालदा बेगम हयाम को लिए वहीं एक तरफ अम्मा बेगम के आगे बैठ गई। एक चीज जो हयाम ने महसूस की थी कि हवेली की मुलाजमाएं कभी भी हवेली की औरतों के बराबर ना बैठा करती थी। जहाँ वो सब फर्श पर बैठी काम कर रही थी, वही हवेली की बीबियां फर्शी तख्त पोशनुमा स्टूल पर बैठा करती थी। उन्हें में से एक पर हयाम भी बैठी हुई थी। किरण भारत से सुई पर धागा परोए अपना काम कर रही थी। ये बहुत प्यारा है, हयाम महवियत में कह गई। किरण ने रुक कर उसे देखा और मुस्कुराई। और तुम्हें भी सिखाती हूँ। हाँ जरूर। हयाम मुस्कुराकर उसके बराबर बैठ गई। नफीसा बेगम भी इतने में वहीं आकर बैठ गई। अभी किरण ने गोटा किनारी दुपट्टे के एक किनारे पर रखकर सुई डालना ही चाहिए थी कि हयाम फौरन बोल पड़ी, 1 मिनट। मुड़कर बशीरा बी को देखा जो अम्मा बेगम के पास ही बैठी थी। बशीरा भी जाए मनाल को बुलाकर लाए। उसके ये कहने पर वहां सबके हाथ थमे। सब जानते थे कि अम्मा बेगम के होते हुए वो यहाँ ना आएगी। अम्मा बेगम ने अफसोदा निगाहों से खालदा बेगम को देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर इन्हें खामोश रहने का इशारा दिया और बोल पड़ी, जाए बशीरा भी, किस चीज का इंतजार कर रही हैं? बुलाकर लाए उसे। बशीरा भी जो और किसी हुक्म की मुंतजिर थी, फौरन से हुक्म मिलने पर वहां से मनाल को बुलाने चल दी। सब जानते थे कि वो ना आएगी, लेकिन हुआ सबकी सोचों के बराकस था। मनाल पर्दा उठाती बशीरा बी के आगे चलते हुए बरामदे में दाखिल हुई। उसने एक नजर भी किसी को ना देखा, सीधा चलकर हयाम तक आई और बोली, तुम्हें मुझसे कोई काम था तो मेरे कमरे में आ जाती, यहाँ क्यों बुला लिया है? ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, इधर आकर बैठो।
हयाम ने उसे घूरा, नतीजन वो चुप करके हयाम के बराबर में बैठ गई। तुम्हें भी ये सब आता है? इशारा जिस तरफ था वो जानती थी। नहीं आता, चलो। हयाम का हाथ थाम बैठे बैठे ही उसे चलने का कहा। सबकी नजरें इन्हीं दोनों के ऊपर थी। झूठ बोल रही है ये हयाम, उसे तो सबसे अच्छा गोटा टांगना आता है। किरण ने शरारत की, शायद वो भी घुलना मिलना चाहती थी। मनाल, हयाम ने मसनूई नाराजगी से उसे देखा और मनाल से अपना हाथ छुड़ाने लगी, जिस पर मनाल ने अपनी गिरफ्त मजबूत की। अच्छा ना मेरी माँ, आओ मैं सिखाती हूँ, माफ कर दो। कुछ देर तो हयाम नाराजगी का नाटक करती रही, लेकिन फिर हंस दी। अब मनाल उसे किरण के साथ सुई धागे का काम सिखा रही थी, जबकि खालदा बेगम उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। खालदा बेगम ने नफीसा बेगम को देखा तो वो भी होले से मुस्कुराई। वो जान गई थी कि कुछ देर पहले उनकी कही एक एक बात सच साबित होने वाली थी। अम्मा बेगम ने एक नजर बशीरा बी को देखा तो वो भी उन्हें देखकर इस बात में सर हिलाने लगी। आज अम्मा बेगम को भी ये मालूम हो गया था कि बेशक हयाम का यहाँ आना आगाज में गलत था, लेकिन उसका उस हवेली में आना बिल्कुल ठीक साबित होना था। हयाम का सफर हो सकता है कि बाकी तमाम सैयदजादियों से मुख्तलिफ हो, लेकिन अंजाम एक सा होने वाला था। उन्हें एक अलग इत्मीनान ने घेर लिया। आरज अभी भी एक मीटिंग से निकलकर अपने ऑफिस की जानिब जा रहा था। आज एक अहम बिजनेस डील थी जो कि कामयाब साबित हुई थी, और क्यों ना होती। उसने अपने बिजनेस को कीमती वक्त दिया था। ऑफिस की जानिब जाते उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी। आरज ने अपनी ड्रेस पैंट की जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकाला तो सामने साद नाम जगमगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो साद? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, मिल सकते हो? हाँ बिल्कुल, बोलो कहाँ आना है? अपने ऑफिस का दरवाजा खोल वो अंदर दाखिल हुआ तो बादल पहले से वहां मौजूद था। कहीं नहीं, तुम्हारे ही ऑफिस में। सोचा तुमसे पूछ लूं एक मरतबा। क्यों नहीं, तुम आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। फाइल टेबल पर रखकर अपनी चेयर घुमाकर बैठा। आरस बादल को खामोश रहने का इशारा कर चुका था, इसीलिए अब तक वो खामोश उसकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मैं बस 15 मिनट तक तुम्हारे पास होऊंगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। आरस के मोबाइल बंद करते ही बादल बोल उठा। कौन था? साथ। क्या कह रहा था? मिलना चाहता है। क्यों? तेरे बारे में बात करना चाहता है। अरस ने गौर से उसके चेहरे के तार चढ़ाव देखे। गुस्से में लग रहा था क्या? हाँ बहुत। एक काम कर, तू संभाल लेना, मैं चलता हूँ। जल्दी से उठकर बाहर निकलने ही वाला था कि जब आरस हंसने लगा। कमीने! इसकी हंसी बादल की तमाम शरारत से आगाह कर गई। वो अपना गुस्सा निकालता वापिस आकर बैठा। अभी तो वो तेरा साला नहीं बना, तो अभी से इतना डर रहा है? मुस्कुराहट बरकरार थी। काश तो डर गया होता तो क्या ही बात थी। सारे डर मेरे ही से ही आने हैं। वो सर आ पड़ता बेचारा बनने का ढोंग रचा रहा था। हम डरने वालों में से नहीं। आंख मारता आरज़ू से आग लगा गया। अच्छा वाकई वो भी कम ना था। हाँ आजमा लो। आजमा ले। शेखी मारी गई। ठीक है। बादल खड़ा हुआ और मोबाइल निकालकर हयाम का नंबर स्क्रीन पर खोला। आरज को झलक दिखाकर वो बाहर को भागा था। जब आरज वहीं बैठा उसको अजीब और गरीब कलमात से नवाजता गया। हाय कम वक्त मोहब्बत, एक मुकाम दे रखा था तेरे नाम को, लोग बात मनवा लेते हैं तेरा जिक्र करके। तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान का कोई वक्त था। स्याह गाड़ी के पहिए चिड़चिड़ाहट की आवाज से थमे। अंदर जो कोई भी मौजूद था बाहर मौजूद लोगों की नजरों से ओझल था। वजह शायद गाड़ी के टर्न शीशे थे। कुछ सेकंड के फर्क से मजीद 4 से 5 गाड़ियां तेज रफ्तारी से चलती उसी स्याह गाड़ी के पीछे आ रुकी, लेकिन कोई बाहर ना निकला। शायद वो किसी के हुक्म के मुंतजिर थे। वो किसी कच्ची बस्ती या कस्बे का मामूली छोटा सा चौराहा था। धूल मट्टी हर सू फैली हुई थी। वहां मौजूद कोई एक अदद दुकान ही खुली थी, जिस पर मौजूद दुकानदार और मुलाजिम हैरत से उन गाड़ियों को तक रहे थे। यूं कभी उस इलाके में कोई गाड़ियां सवारी के नाम पर कोई साइकिल तक ना गुजरी थी। वजह ये थी, सुन तुझे पक्का यकीन है ना वो बच्चा वही है जिसकी तुझे तलाश है? पुलिस की वर्दी में मलबूस है खूबरू मर्द जिसकी उम्र अपने साथ मौजूद साथी जितनी ही थी। चेहरे का नुकुश बहुत खूबसूरत ना सही लेकिन मानित भी ना थे। एक कशिश सी थी, गंदमी रंग मगर गहरी नीली आंखें और सबसे बढ़कर चेहरे पर मूछें जिनकी तराश खराश खूब अच्छे से की गई थी। वो उसकी शख्सियत को मजीद निखार रही थी। तुझे किसने पुलिस वाला बनाया है और तुझे मेरी बात का यकीन नहीं है? उफ, कैसा दोस्त है तू? उसका साथी उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। शामी तेरी बात ठीक है, मैं जानता हूँ सब और मुझे यकीन भी है, लेकिन ये वर्दी सिर्फ वर्दी नहीं है,
बहुत सी जिम्मेदारियां और फ्राइज है मुझ पर। मैं बगैर किसी सबूत के किसी को क्या पकड़ूंगा? अपने से ऊपर मौजूद लोगों को जवाब देना पड़ता है। जवाबन सामने वाला खामोश हो गया। बुरहान, एक सबूत ही तो नहीं है मेरे पास। ये जो तेरा उड़ रहा है ना, तेरे बलबूते पर उड़ रहा हूं। तू उसे पकड़ तो सही, सबूत तुझे वहीं मिल जाएंगे, और अगर ना मिले तो जैसा तू कहेगा फिर वैसा ही होगा। जवाब में उसने सिर्फ अपना सर हिलाया। शायद के पीछे मौजूद तमाम गाड़ियों को जिस हुक्म का इंतजार था वो सादिर हो चुका था। एक एक करके हर गाड़ी में मौजूद अफराद उतरते गए। शायद वो सब भी पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग थे, लेकिन सिविल कपड़ों में मलबूस एक एक के मतलूबा गली में फासले फासले पे अपनी मंजिल को जाने लगे। तो यहीं रह, मैं आता हूँ, बुरहान नामी लड़के ने उसे कहते हुए आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। मैं साथ नहीं, ये मेरा काम है, मुझे करने दे। जवाबन शामी ने महज सर हिलाया। बुरहान अपनी टीम के पीछे चल दिया। उनकी मतलूबा मंजिल पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल था। जमाल सारा सामान उठा एक कपड़े की बड़ी सी चादर में डाल उसे गठरी की शक्ल दे रहा था। उसकी माँ चीख रही थी। उसे यहाँ से निकलना था, उसके बस में होता तो वो कल खबर मिलते ही निकल चुका था, लेकिन पैसों का बंदोबस्त भी तो करना था उससे पहले कि शहरी बाबू इस आदमी के कहे के मुताबिक यहीं पहुंचता, वो यहाँ से चली जाएगा। वो ये सोच चुका था। वे जमाल, बस कर दे भागना, मरना है तो शौक से मर, मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो भी माँ थी, क्या करती? अब तक जो खामोशी से अपने बेटे के हर गलत काम पर आंखें बंद किए यहाँ तक आ गई, तो एक मरतबा और सही। अपनी माँ को खामोश देख वो चलकर अपनी माँ तक आया और उसके हाथ थाम कर बोलने लगा, चल मेरे साथ, बस अब जहां ले जाएगा सुकून से जिएंगे वहां, फिर कोई शहरी बाबू ना ढूंढ सकेगा और ना मैं भागूंगा। वो बोल तो उर्दू में ही रहा था, लेकिन लहजा खालिस्तन पेंडू में था। पकड़ इस मनहूस को। पास खड़े अपने बेटे की जानिब इशारा करता वो चादर खुद के गिर्द लपेटता अपना चेहरा आधा ढाम गया। एक हाथ में पिस्तौल पकड़े उसे चादर के अंदर छुपाया। अपनी माँ को पीछे आने का इशारा करता वो बाहर की जानिब हो लिया। उसकी माँ उसके पीछे जा रही थी। एक लम्हे को उस औरत ने पीछे मुड़कर कोने में बिछी चारपाई पर गिरी पिस्तौल की गोलियों को देखा, लेकिन अगले ही पल वो चेहरा वापस मोड़ती उस मकान की दहलीज पार गिर गई। सर झुकाए वो अपनी माँ के साथ चलता एक बाजू में सामान डाले चल रहा था, लेकिन उसकी हिस्सियत जिंदा थी। इर्द गिर्द सब कुछ बहुत महवियत से जायजा लेता वो तेज तेज कदम उठाता चल रहा था। उसके पास वक्तन फवक्तन कुछ लोग गुजरते। एकदम उसका माथा ठनका। पहले तो यूं कभी उस वक्त उसने इस बस्ती में लोगों को इतना आना जाना ना देखा था। खतरे की वो सूंघ चुका था। अपनी माँ के बाजू को जोर से पकड़ उसे उसका बेटा गोद लिया हुआ था। वो तेज रफ्तार से भागने लगा। उसकी माँ तकरीबन घसीटती हुई उसके साथ हो ली थी। उसके मुकाबले कुछ फासले पर खड़े पुलिस की वर्दी में मलबूस से खुश शक्ल नौजवान मर्द ने आसमान की तरफ बंदूक की गोली चलाई। उसकी गूंज से उसके कदम थमे। चेहरा उठाकर उसे देखा। उसकी वर्दी यकीनन वो फंस चुका था, लेकिन एक आखिरी कोशिश उसे करनी थी। वो वापसी के रास्ते पर भागने के लिए मुड़ा, लेकिन वही हुआ जिसका उसे डर था। वो तमाम लोग जो खतरे की घंटी बजा उसे खबरदार कर गए थे, फासले फासले पर खड़े बंदूकताने एक गोली सिर्फ एक हमले के लिए तैयार थे, लेकिन वो हार नहीं सकता था। जमाल बख्त ने हारना नहीं सीखा था। अपनी माँ से बच्चा छीन चादर में छुपाया, अपना हाथ बाहर निकाला और हाथ में मौजूद बंदूक पीछे तान ली। उसकी गोद में मौजूद बच्चा सहम कर जारो की तार होने लगा, लेकिन उसे परवाह ना थी। अपने अपने हथियार फेंक दो, वरना 1 मिनट लगेगा मुझे जमाल बख्त को इस सोने की चिड़िया में धर धर गोलियां उतारने में। मुझे समझता था सब डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ था। पुलिस की वर्दी में मौजूद शख्स कदम ब कदम चलता उसके नजदीक आ रहा था। मैं सच में मार दूंगा, लेकिन सामने मौजूद शख्स के कदम रुकने से इनकारी थे। आज जमाल बख्त की किस्मत उसका साथ न दे रही थी। उसने फैसला कर लिया था, अगर यही होना है तो वो अकेला नहीं डूबेगा, वो सबको लेकर डूबेगा। अपने बच्चे के सर पर बंदूक रख चिल्लानी चाहिए, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, लेकिन एक क्लिक की आवाज के सिवा कुछ ना हुआ। अब मायूसी ने उस पर राज किया था। दूसरे हाथ का सहारा ले पिस्तौल के अंदर की तलाशी ली, झांका तो वो खाली था। उसे जितना याद पड़ता था वो सारी तैयारी के साथ निकला था। फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वो शशा पंच का शिकार था। उससे पहले कि वो कोई और कदम उठाता, सामने खड़े शख्स के पीछे से वो चलकर सामने आया, वही जो शहरी बाबू था, या फिर उसे लगता था। शामी के चेहरे पर तनसी मुस्कुराहट थी। सलाम जमाल बाबू। वो सच में अपनी तरबियत की चाकरी कर रहा था या तंज वो समझ ना सका। रूहाने से गौर कर देखा। वो जो उसे आने से मना करके आया था, लेकिन मजाल है जो शामिर उसकी कभी सुन लेता।
लेकिन शामिर उसे देख ही कब रहा था। उसका सारा ध्यान सामने खड़े आदमी के गोद में मौजूद बच्चे पर था, जो अब भी रोने में मसरूफ था। हद से ज्यादा कमजोर, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चे की उसकी माँ से मुशाबत महसूस कर सकता था। जमाल, उसे इधर दे दो। शामी ने बच्चे को लेने की खातिर हाथ आगे किए। ये तेरी गलती है, जो समझ रहा है कि मैं चुप करके ये मोहरा तेरे हाथ में दे दूंगा। उस पर गुस्से का भूत सवार था। यूं अचानक बाजी पलट जाने पर गुस्सा तो बनता था। अब तुम जो भी कर लो, तुम बच नहीं सकते। बुरहान ने 2 कदम मजीद आगे बढ़ाए। बेजमाल, मैं कहती हूँ दे दे, ये मैं नूस मारा उसे। ये लोग तुझे कुछ नहीं करेंगे। उन सब में उसकी माँ पहली बार बोली थी। अखियां खोल कर देख, वो तेरे सामने खड़ी है। लहजा पहले की तरह मजबूत ना था। नहीं मारेंगे ये तुझे, उन्होंने वादा किया है मुझसे। वो बेदहानी में छुपी हकीकत उस पर आश्कार कर गई। जमाल की आंखों में हैरत सिमटी और फिर गुस्सा। अब वो समझ गया था कि उससे कोई गलती नहीं हुई थी। वो तमाम तैयारी के साथ ही निकला था। उसकी अपनी माँ ने उस पर पीठ पीछे वार किया था, लेकिन तमाम गुस्सा झाग बनकर बैठ गया। थकन के आसार नुमाया थे। शायद वो भी भाग भाग कर थक गया था। उसकी माँ ने बच्चा लेने की खातिर उसकी जानिब हाथ बढ़ाए। वो बेअसरार आंखों से उसे देख रहा था। अचानक जो गुस्सा दबकर कहीं बैठ गया था, वो बाल खा के वापिस से जिंदा हो गया। बच्चे को एक तरफ जमीन पर उतार उसने बेदर्दी से अपनी माँ को झपटा। उसकी उंगलियां उसकी माँ की गर्दन के गिर्द जकड़ी हुई थी। एक पुलिस एहलकार ने आगे बढ़कर उससे अलग करना चाहा तो उसकी अपनी माँ को छोड़ उसकी बंदूक झपटी, जो कि दोनों के हाथों में कभी अपनी गिरफ्त मजबूत करती तो कभी फिसल जाती। शमीर ने फौरन आगे बढ़कर बच्चे को थाम लिया और बुरहान के एक इशारे पर उससे ले वापसी की राह पर भागने लगा। एकदम माहौल में गोली चलने की गरजदार आवाज गूंजी। शामिर के कदम थमे। बुरहान की मध्यम आवाज उसे सुनाई दे रही थी, कहीं पीछे औरत के रोने की आवाज में खलल पैदा कर रही थी। उसने मुड़कर देखा तो जमाल ने एक तरफ बेहिस हरकत गिरा पड़ा था। खींचा तानी में गोली चल पड़ी थी और सीधा उसके सीने के दिल के मुकाम पर जा लगी। जमाल की माँ उसके सरहाने बैठी रो रही थी। उसने वो सब अपने बेटे की भलाई के लिए किया था, लेकिन काश कि वो ऐसा ना करती तो वो जी लेता। वो अपनी बदनसीब पर मातम कना थी। शामी ने बच्चे के रोने की आवाज पर वापस होश में लौटा और वापस गाड़ी की जानिब चल दिया। एक मुश्किल मरहला वो सर अंजाम दे चुका था, पर एक इम्तिहान अभी मजीद बाकी था। आरस और साद इस वक्त आमने सामने बैठे थे। साद लगातार आरस को तकने में मसरूफ था। अभी 10 मिनट पहले साद उसके ऑफिस में चलकर आया था। तब से वो दोनों यूं ही थे। साद, तुम ठीक हो? आखिरकार आरस ने हिम्मत करके बोलना शुरू किया। तुम ठीक हो? सवाल पर सवाल किया गया। मुझे क्या होना है? लेकिन आरस हसन भी कोई इतना सीधा ना था। बहुत अफसोस हुआ मुझे। साद ने बाजी जीत ली। मजाक बनाने आए हो मेरा? साद को पहली मरतबा लगा कि वो गलत बात गलत वक्त पर कह गया था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, ये बताओ क्या बात करना थी? इससे पहले साद जवाब देता, आरस हसन का असिस्टेंट अली दरवाजा नॉक करते अंदर आया और कॉफी का एक भाप उड़ता मग साद के सामने रखा। आरस के सामने वो इसके मामूल के मुताबिक चाय से भरा मग रख रहा था। जब अली वापसी की राह लेने लगा तो साद ने उसे पुकारा। सुनो अली, ये चाय ले जाओ और इसमें मजीद 2 चम्मच चीनी डाल दो। लेकिन सर इतना मीठा ही लेते हैं। ले जाओ, ये जो कह रहा है कर दो। आरस ने साद को देखते हुक्म सुनाया, जिसके तकमील पर फौरन अमल किया गया। एक मरतबा फिर चाय आरस हसन के सामने पड़ी थी, जिसको उसने हाथ तक न लगाया था। पी लो, तुम्हारा शुगर लेवल ठीक रहेगा। आरस ने सर तिरछा करके उसे देखा और फिर चाय को एक लेकिन हाथ बढ़ाकर मग उठा लिया। पहला घूंट भरते ही उसे क्या महसूस हुई, लेकिन चेहरे पर ऐसा कोई तासुर ना दिया। वो मीठा पीता था जितना पी सकता था, लेकिन ये बहुत ज्यादा था। बोलो। मेरी परी के लिए तुम्हारा भाई बादल मुझे पसंद नहीं। वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन परी के लिए वो मेरी चॉइस नहीं और ना बन सकता है। बेहतर है तुम उसका कदम रोक लो, वरना उससे गिरता देखना तुमसे नहीं होगा। आरस ने आंखें बंद की। वो जानता था बादल परीक्षा को लेकर सीरियस था। वो उन लड़कों में से ना था जो पहले किसी को पसंद करे और फिर फैसला। वो उनमें से था जो पहले फैसला करते हैं और फिर पसंद। वो बादल को अपनी जगह सोचना भी नहीं चाहता था। और मेरा ख्याल है कि परी के लिए उससे बेहतर कोई चॉइस नहीं हो सकती। एक पुरानी मिसाल है, आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती। आरस उसके कहने का मतलब समझ गया था। साथ मुझे अफसोस है, मेरी एक गलती कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर गई, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि किसी बड़े फैसले के हो जाने से पहले सब ठीक हो रहा है?
بالکل نہیں، تم مرد ہو آرس، اور مرد کبھی کمزور نہیں ہوا کرتے۔ سعد کے لہجے میں غصہ واضح تھا۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، اب سمجھا ہوں کہ مرد ہی تو کمزور ہوتے ہیں، اور عورتیں جنہیں ہم نازک کہہ کر سچ میں کمزور سمجھ لیتے ہیں، وہ ایک مرد سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتی ہیں۔ اور تم بتاؤ، تم تو جانتے ہوگے کہ پریشا بھی بادل کے ساتھ اس کے دکھائے رستے پر چل نکلی ہے، تو اپنی بہن سے کیا کہو گے؟ ساتھ ششوپنچ کا شکار ہوا، کیا گارنٹی ہے اسے بھی تمہاری طرح اپنی کوئی مجبوری یاد نہیں آئے گی، اور وہ پری کو درمیان کی راہ میں نہیں چھوڑے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا تو میرا یقین کرو، مجھے تم پر اب یقین ہی نہیں رہا آرس۔ سعد نے صاف صاف اسے سچائی سے آگاہ کیا۔ تو ٹھیک ہے، مت کرو، لیکن پھر بھی فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے، بہتر ہے جلدی کر لو، آج امی آئیں گی خالہ سے بات کرنے۔ سعد بنا کوئی جواب دیے اپنا موبائل اٹھا کر اس کے آفس سے نکل گیا۔ آرس کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اسے اماں کو اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں ساری کی ساری چائے اپنے اندر ڈھیل لی۔ اسے سچ میں اس بد ذائقہ مشروب کی ضرورت تھی۔ مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ حویلی کی عورتیں اب تک دوپٹوں پر گوٹا ٹانگنے میں مصروف تھی۔ برآمدہ جگمگاتی روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ اما بیگم کے کہنے پر سب نے کام چھوڑ دیا اور نماز کے لیے وقفہ لیا گیا۔ سب ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ سب کو اذان کا انتظار تھا۔ ملازمہ البتہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ خالدہ بیگم نفیسہ بیگم کے ہمراہ اما بیگم سے کوئی بات کرنی تھی، جب کرن منال کے ساتھ مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ حیام اور منال ایک طرف کو اکیلے بیٹھے تھے۔ چونکہ حیام کے کام میں ابھی صفائی نہ تھی تو اسے ایک الگ دوپٹہ پکڑا دیا گیا تھا جو وہ ایک طرف پھیلائے منال کو دیکھ ٹانک رہی تھی۔ حیام نے سرگوشی کی صورت منال سے بات کا آغاز کیا۔ میں نے سنا تھا کہ سعادت اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہیں رکھتے اور نہ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ منال نے اسے دیکھا اور سر ہاں میں ہلایا۔ یہ سچ ہے، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ حویلی یہاں کے لوگوں کے لیے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی نہیں ہے؟ فضول میں اتنی زمین خالی چھوڑ دی گئی ہے، اور ہے بھی تو کسی کام کی نہیں، آدھی سے زیادہ تو بند ہے۔ منال اسے عجیب نظروں سے تکنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی جواب دے یا نہ دے، لیکن پھر بول پڑی۔ یہ حویلی بہت پرانی ہے۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ ہم سے پرانی کتنی نسلیں یہاں جمان ہوئیں اور پھر اپنے اصل میں واپس بھول گئیں۔ میں بس یہ جانتی ہوں یہ زمین اور حویلی خاندانی ہے اور سعادت گھرانے سے وابستہ ہے۔ ہمارے بڑوں سے منسلک ہر چیز میں برکت ہے، اور حویلیاں کبھی رہنے والوں کی ضرورت کے مطابق نہیں تعمیر دی جاتی، بلکہ وہاں دفن رازوں کے معیار کے مطابق زندہ ہوتی ہیں۔ حیام کی آنکھیں تو جسس سے چمکی۔ وہ مزید کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن مغرب کی اذان ماحول میں سکوت پھیلا رہی تھی۔ وہ خاموش ہو کر وہیں ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اما بیگم کی گہری نظروں کا رخ اس کی جانب تھا، یوں جیسے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔